Greater Noida. His area of interest are e-business, digital marketing, information system, business intelligence, data mining, corporate social responsibility and sustainable development. Now I would like to invite Dr. Saurav Mittal to start the session. Sir, please continue the session. Good afternoon, everyone, and thank you, Sonia ma'am, for giving me this great introduction. So I can see there is a very participative and enthusiastic audience in this program. So the session that we are starting today, that is on the predatory journals. So I could see from the program schedule that there have been multiple other sessions which have been conducted over the last 3-4 days in this program. So the first question I would like to check. Let us make this session more interactive, and most of the time I would like to have the interaction in the form of the reactions that are emojis. I hope on the Zoom you can find the emojis which are given on the bottom bar. So there is an emoji for clapping, there is an emoji for thumbs up, there is an emoji for open mouth. So this open mouth will be for any questions that you will be having during my session. So anytime you can raise this emoji, and whenever you have understood anything, you can actually do the clapping, or you may give me a thumbs up. That will actually motivate me further. Okay. So we have got some students from PhD Hindi students also. Okay. Okay, I will try to have Hindi and English both, that will be mixed. So first of all, I would like to understand how many of you are aware of the predatory journal practices. What is predatory journal? Please come to the chat. Chat में आकर एक बारी बताइए कि आपको predatory journal के बारे में क्या जानकारी है. Fake journal, okay. Anita says fake journal. Who else? Predatory journal और क्या होता है? Which are not legal. ये legal वाला जो issue है इसको थोड़ा सा question mark है, because there might be journals which might seem to be predatory but they are not. They charge for publication of papers. Kavita, that is again very sensitive issue. Paid publishing is not always predatory. Yeah, it is a false way of publication. Took money for publication. Trap the fresh researcher. Okay, quite good. Quite good. So it is always good to have the misconceptions first, and then we start the things. Okay, Preeti says that they charge money to pass quickly. Okay, not follow the guidelines. Quite good. Okay, don't check the paper thoroughly. They won't go for the peer review. Main aim is to charge money. Okay, quite good, quite good. So quite a good participation and interaction from your side. Thank you very much. Let us start with the formal discussions on this topic. And during the discussions also, I would request all of you to please keep interacting in the chat. I will keep on reading your chat messages, whatever is coming in, right? So protecting yourself from predatory journals. So there are many misconceptions I could see in the chat, and okay, so they increase their impact factor also, publishing after charging fee. So there are many journals which are actually charging money and they are publishing your papers. But how do we differentiate which particular journal is predatory, which journal is genuine? So my workshop, I would try to give you some great insights that you will be able to differentiate whether a particular journal is predatory or not. Fine. So my brief introduction has already been given. I am Dr. Saurav Mittal, representing GL Bajaj Institute of Management and Research, PGDM Institute, Greater Noida. So in my very beginner's profile, I can say in the research publications, I have around 25 researches published till date, out of which definitely 9 are indexed in Scopus and Web of Science.
And I would like to share with you that I have also been approached by many predatory journals in the recent past. Especially in the beginning of my career, in the beginning of my research career, I was targeted many a times by predatory journals. And I actually submitted my manuscripts also to them, and I got the acceptance also, right? So that is my own experience that I'm going to share with you, right? Okay, so what are the predatory journals? Number one, those journals which are which are actually deceptive publishing. They are trying to exploit what? Exploiting the desire of researchers for getting their work published quickly, without any major scrutiny, and with whatever the wrong ways possible. So as the human instinct, I can say that we want all the things to be done very, very quickly. And if we have to throw the money, even then it is considered to be right. So that is actually the corruption that starts from a common person, right? So no predatory journal can actually ditch you if you are honest in your own practice. So first of all, we need to understand that they will exploit you only if you are desperate. That is your own crime. The second crime that we people do as a researcher, that we want to find out the easy way out from all the rigorous things in life. So first we need to actually check that what are the real methods. And the third thing that is important, that whenever we are doing anything in life, we don't train ourselves. We don't acquire the sufficient knowledge before starting any activity. That is the reason that we are actually facing accidents, right? Even when we started driving that two-wheeler or maybe four-wheeler, we took the proper training. We understood what is the functioning of the various components. But when we started the research, we never took the proper training. So it is always a good idea that all the researchers who are in the beginning phase of their career, they should actually undertake some of the trainings. तो कहीं भी आपका कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा हो, वर्कशॉप हो रहा हो, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा हो, जहां पे रिसर्च से रिलेटेड बेसिक्स जहां सिखाए जा रहे हो, यू शुड पार्टिसिपेट इन दैट एटलीस्ट फॉर ए 7 days प्रोग्राम और 10 days प्रोग्राम लाइक यू हैव जॉइन दिस वन. तो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट क्या है, दैट यू विल बी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द न्यूएंसेस ऑफ रिसर्च. आपको बिल्कुल जो बारीकियां हैं वो समझ आ जाएगी कि रिसर्च में काम कैसे करना होता है, कैसे आपको धोखे से बचना है, कैसे आपको अच्छे जर्नल्स तक पहुंचना है, कैसे आपको अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स लिखने हैं. पता चला कि कहीं ऐसा भी होता है, ऑल डियर फ्रेंड्स, दैट वी एक्चुअली पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट इनटू राइटिंग अ रिसर्च पेपर. बहुत मेहनत लगाई, 6 महीने साल भर का समय लगाया, जगह जगह के जर्नल्स को पढ़ा हमने, लिटरेचर रिव्यू किया, डेटा कलेक्शन किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद में होता क्या है कि पब्लिकेशन में ऐसे जर्नल में हमने अपना पेपर सेंड कर दिया जिसका कोई सिर पैर नहीं है. There are many people around the world who are trying to get hold of your manuscript. आपका मैन्युस्क्रिप्ट उसे मिल गया तो उसके बाद में शायद आपसे पैसा भी कमाना चाहेगा. दूसरा, योर मैन्युस्क्रिप्ट विल बी पुट ऑन सेल. वेरी वेरी केयरफुल वी नीड टू बी. आपका मैन्युस्क्रिप्ट है, आपने लिखा है, ये आपको पता है, पर जब तक ये पब्लिश नहीं हो जाता है, इट इज ओपन फॉर एनीवन. जस्ट इमेजिन, आपने केमिस्ट्री का एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा, आपने उसको एक प्रेडेटरी जर्नल के पास भेज दिया. प्रेडेटरी जर्नल क्या करता है कि उसका कोई लेजिटिमेट एंटिटी नहीं है, दे माइट बी सेलिंग इट टू सम अदर रिसर्चर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आप इंडिया के ऑथर हैं, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज आपने जर्नल को सेंड किया तो मुझे पता है दैट दिस मैन्युस्क्रिप्ट हैज बीन रिटन प्रॉपर्ली. आपने लिखा है, जितना भी आपने अच्छे से लिखा, खराब लिखा, दैट इज नोन टू यू. But there are other people who are ready to pay for your manuscript. शायद फेसबुक में भी आपने देखा होगा, अगर आप कुछ ग्रुप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो दे आर ऑफरिंग यू ऑथरशिप ऑफ द जर्नल्स. वो कह रहे पूरा रिसर्च पेपर तैयार है, आप 20,000 रुपए दीजिए, 10,000 रुपए दीजिए, वी विल गिव यू सेकंड ऑथरशिप और फर्स्ट ऑथरशिप ऑल्सो. कहाँ से आते हैं पेपर्स? Many a times these are the manuscripts which are submitted by researchers like you and me to these predatory journals. तो हमारे
मेहनत के ऊपर कोई दूसरा बंदा काम करके ले जाएगा. And just imagine what will happen if this manuscript is a part of your PhD thesis. आपका PhD thesis, आपने उसमें से 2 पेपर्स निकाले, प्रीडेटरी जर्नल को सबमिट कर दिया, प्रीडेटरी जर्नल ने ले जाके उसको कहीं और सेल कर दिया. आप अपनी PhD थीसिस पे काम करते जा रहे हैं. 4-6 महीने के बाद आपका पेपर किसी दुनिया के दूसरे कोने में कहीं जाके पब्लिश हो जाता है. And when you are actually checking for plagiarism in your own thesis, you are finding, okay, the full paper has been already published. What will happen to you? आपका कई साल का PhD work will be lost. You will be nowhere. You cannot claim anything because your work has not been published till that particular date. That is the risk that you people are having with predatory journals. अभी तक की मेरी बात जितने लोगों को समझ आ रही है, एक बारी मुझे इमोजी से आंसर दीजिए. जितने लोगों को मेरी बात समझ आई है, पसंद आई है, थम्स अप कर दीजिए. जिन लोगों को समझ नहीं आया है, ओपन माउथ कर दीजिए. इमोजीज हमारे पास में है रिएक्शंस that will help me in understanding your feedback. Okay, good, very good. So quite a motivation for me. So these are the things that as an author, that as a researcher, we need to be very careful. What these journals are doing, they are charging the publication fee. They are charging from the authors. And they are not checking the quality of your articles also. But जैसा कि अभी मुझे शुरू में आप लोगों ने बताया, चैट में मैंने देखा कि भाई अगर कोई जर्नल पैसा चार्ज कर रहा है तो क्या वो प्रीडेटरी है? परविंदर कौर, नवीन कुमार, डॉक्टर चूड़ामणि, मिस्टर प्रीतम सिंह, यू आर रेजिंग योर हैंड. कैन वी नो द रीजन? चैट में आ जाइए. एक बारी कोई क्वेरी है तो आप सीधा सीधा पूछ सकते हैं. यू आर रेजिंग योर हैंड्स. Any query? Or we should simply down your hands, lower कर दें. चेक. तो क्या जो भी जर्नल आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है, तो क्या वो लेजिटिमेट है या नहीं है? क्या वो भी प्रीडेटरी है? सुप्रिया, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके. ओके, सुप्रिया सेइंग मे बी. चांसेस हैं. शायद आप लोगों ने ओपन एक्सेस का कॉन्सेप्ट सुना होगा. ओपन एक्सेस क्या होता है? प्लीज कम टू द चैट. व्हाट इज ओपन एक्सेस जर्नल? देखते हैं कितना आपको थोड़ा इसके बारे में. ओपन टू ऑल. ग्रेट. Which don't charge. No, Manisha, it is different. Okay. Free to use, accessible to all. Fantastic. So simple words में मैं बताता हूँ. देखिए, एक सिंपल सी स्टोरी से शुरू करेंगे. That I am running a business, right? I am running a business. I am having some resources, and those resources I am going to provide to others. Right? Resources मैं जब दूसरे को प्रोवाइड करूंगा तो क्या मुझे उस रिसोर्स का कुछ पैसा लेना पड़ेगा? Should I sell it or not? रिसोर्सेज हैं, बड़े अच्छे काम के हैं, सेल करना है, पैसे तो लेने पड़ेंगे. अदरवाइज हाउ विल आई रन माय बिजनेस? या फिर मैं अपनी जो शॉप है, अपना जो शोरूम है, उसका खर्चा मैं कैसे चलाऊंगा? तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज विद द रिसर्च ऑल्सो. जितने भी जर्नल्स हैं, उन जर्नल्स के या तो सब्सक्रिप्शन होते हैं, सब्सक्रिप्शन से पैसा आता है, या दूसरा तरीका है कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल को सेल करते हैं मार्केट में. तो दोनों तरीके से अगर जो पैसा आ जाता है, देन इट इज एक्चुअली ए नॉर्मल जर्नल. राइट? एक ये बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होती है कि आपने अपना मटेरियल रेडी किया, उसको पब्लिश किया, उसके ऊपर आपने कॉपी एडिटिंग की, रिव्यू प्रोसेस लगाया, आपने अपनी टीम से मेहनत कराई, आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, और जो भी लोग कंज्यूम करने वाले हैं, द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द पब्लिकेशन. राइट? अगर मुझे कोई रिसर्च पेपर पढ़ना है अपनी कंपनी के लिए, अपने खुद के पीएचडी थीसिस के लिए, या फिर अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए, आई हैव टू बाय द रिसर्च आर्टिकल्स व्हिच हैव बीन पब्लिश्ड बाय द जर्नल. तो उसके लिए मुझे फीस पे करनी
पड़ेगी, जो भी अमाउंट होगा $50 $100 जो होगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। ये तो है एक सिंपल तरीका। डेफिनेटली जिस बंदे ने रिसोर्स दिया था, मतलब जो ऑथर है, ऑथर ने रिसोर्स दिया है, उसी रिसोर्स को पब्लिशर ने अपने जर्नल के थ्रू जगह जगह पहुंचा दिया है। लोग उसको पढ़ रहे हैं, रिसर्चर को नाम मिलता है, रिसर्चर को फेम मिल जाता है, एंड द रीडर इज गेटिंग द पब्लिकेशन फॉर देयर ओन कंजम्पशन। पैसा पे चाहता हूं कि मेरा जो पब्लिकेशन है वो पब्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे हैं हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशंस। भाई मैं $100 के कितने रिसर्च पेपर डाउनलोड करूं? मैं तो एक सिंपल सा रिसर्च स्कॉलर हूं, मेरे पास तो फंड्स ही नहीं है, तो $100 के रिसर्च पेपर मैं कहां से डाउनलोड करूंगा? तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे जर्नल्स ढूंढूंगा जहां पे मुझे फ्री में सारा कंटेंट मिल जाए। अब ये जर्नल्स कहते हैं कि अगर मैं रिसर्चर को आपका पेपर फ्री में दूंगा तो मेरा खर्चा कहां से निकलेगा? सो फॉर मीटिंग देयर एक्सपेंसेस दे आर रिक्वेस्टिंग द ऑथर्स फॉर मेकिंग द पेमेंट। तो ऑथर पे करता है, ऑथर ही अपना रिसोर्स बनाता है, ऑथर ही पे करता है जर्नल को, एंड जर्नल विल डू व्हाट? The journal editor team, they will do the quality check, they will do the review, they will do the typesetting, and they will distribute your article to the wider public. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका रिसर्च चला जाता है। जितने रिसर्चर्स हैं, 100 200 1000 2000 लोग पूरी दुनिया में जो चाह रहे होंगे आपका जैसा रिसर्च पेपर, दे विल बी एबल टू डाउनलोड योर वर्क, राइट? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ओपन एक्सेस। आपके जर्नल का, आपके पब्लिकेशन का ओपन एक्सेस अवेलेबल है लोगों के पास। पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट इज बीइंग डन बाय द ऑथर्स। ठीक है, तो क्या ये एक अच्छी प्रैक्टिस समझ में आती है हमें? प्लीज कम टू द चैट, प्लीज कम टू द चैट एंड टेल मी, क्या ये एक अच्छा प्रैक्टिस है? यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा तो है। अच्छा एक चीज बस, एक मुझे एक और आंसर बताइए कि ये रीडर के लिए अच्छा है या रिसर्चर के लिए अच्छा है? दोनों में से एक, चैट में बस उसी का लिखिए, रीडर के लिए अच्छा है या रिसर्चर के लिए अच्छा है। रवीना कह रही है बोथ बोथ बोथ, गुड गुड गुड, रीडर बोथ, रीडर, ओके ओके ओके। ये बोथ क्यों लिख रहे हैं लोग? इज द बेनिफिट ऑफ ओपन एक्सेस। And the good news for all of you is that all the good publishers, they are having the open access also. ज्यादा से ज्यादा जो जर्नल्स हैं वहां पे ओपन एक्सेस होता है। बट ओपन एक्सेस की कहानी थोड़ा सा और आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी का थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि ओपन एक्सेस इज वन मैकेनिज्म इन विच द आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन दैट जर्नल for which the payment is to be done by the author, and as a reader you don't need to pay anything, right? So ओपन एक्सेस को लेके जितने हमारे डाउट थे वो कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो गए होंगे, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रीडेटरी जर्नल्स काम कैसे करते हैं? प्रीडेटरी जर्नल्स का तरीका क्या होता है? ये कभी भी प्रीडेटरी जर्नल एक बहुत बड़े ऑथर को टारगेट नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है एक बड़ा रिसर्चर है जिसके पास अपने 10 20 50 100 आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं, तो वो उनके झांसे में नहीं आएगा, है ना? तो जनरली ये क्या करते हैं, ये जाके गूगल की प्रोफाइल पे जाएंगे, गूगल स्कॉलर पे। आई होप गूगल स्कॉलर सबने देखा होगा प्रोफाइल अपना, अब बना भी रखा होगा। जिनका नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, सारे रिसर्चर से, कि अपना खुद का प्रोफाइल अभी से बना लें गूगल स्कॉलर पे। तो गूगल स्कॉलर में जाके अगर वो चेक करता है किसी भी बंदे का प्रोफाइल, पता लगता है कि दिस पर्सन इज ए वेरी वेरी फ्रेश एंट्री इनटू रिसर्च डोमेन, तो ये लोग पता लगा लेते हैं कि, और खास तौर पे अगर आपके रिसर्च प्रोफाइल में लिखा होगा रिसर्च स्कॉलर, तो डेफिनेटली यू आर एन इजी टारगेट। तो पता लग गया कि भाई ये तो पीएचडी वाला बंदा है, इसको जल्दी से जल्दी 2 पेपर दिखाने हैं, तो दीज पीपल विल बी एक्साइटेड फॉर मेकिंग पेमेंट एंड दे विल बी ट्रैप्ड इजीली। मैंने बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर से मैं मिला हूँ, मेरे नेटवर्क में काफी लोग ऐसे हैं, इनकी रिक्वेस्ट बस सीधी होती है, सर एक बार ये बता दो कि कौन से जर्नल में जल्दी से छप जाएगा। सर 10-20 हजार रुपये भी लग जाएंगे तो कोई आफत नहीं आ रही, बट द जर्नल हैज टू बी स्कोपस। स्कोपस का नाम सबको समझ में आ गया अभी। इन द लास्ट 2-3 years it has become a norm in most of the universities. And एक और इशू जो मुझे समझ आता है प्रीडेटरी जर्नल की जो पूरी जर्नी है, पूरी जो स्टोरी है, that there are some stringent guidelines by the government
which are to be blamed for predatory journals prevalence in the market. मार्केट में इतने predatory journals क्यों आए? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, गवर्नमेंट एजेंसीज ने ऐसी गाइडलाइंस बना डाली कि भी आपको साल में 2 पेपर तो छापना ही है, अदरवाइज आपका एपीए स्कोर नहीं बढ़ेगा। फैकल्टी की एंट्री करनी है तो वहां पे भी आपको 2-3 पब्लिकेशन चाहिए। पब्लिकेशन लाइए, कैसे भी लाइए। उसी जल्दबाजी में हमारे लोग लगे हुए हैं, रिसर्चर्स हमारे मेहनत करने में लगे, मेहनत करना नहीं चाह रहे, कोशिश कर रहे कि जल्दी से जल्दी पेपर हाथ में आ जाए और सरकारी नौकरी मिल जाए, या फिर मेरा पीएचडी थीसिस कंप्लीट हो जाए, या फिर मुझे प्रमोशन मिल जाए मेरी जॉब के अंदर, राइट। सो जैसा मैंने कहा कि 60% ऑफ द आर्टिकल्स that are actually published in the predatory journals, they are not getting any citation also. हम लोग जल्दबाजी में क्यों थे? पैसा खर्च कर रहे थे कि मुझे साइटेशन मिल जाएगा, जल्दी से छप जाएगा। शायद कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकता है कि गौर भी ना करें, आपकी जो पीएचडी थीसिस आपने सबमिट किया, प्रेडेटरी जर्नल में छाप दिया, हो सकता है कि वो लोग क्वालिटी चेक ना करें। जनरली करते हैं, अगर नहीं भी करें तो होगा क्या, आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको साइटेशन नहीं मिलेगा। कहीं भी अच्छी जगह पे आपका प्रोफाइल है, वहां पे आप शो नहीं कर पाओगे कि आपने जो पब्लिश किया है, जो आपने मेहनत की है, 6 महीने साल भर की मेहनत करके रिसर्च पेपर लिखा, दैट यू कैन नॉट शो ऑन योर प्रोफाइल, राइट। तो बहुत सारे हमारे पास एफर्ट्स हुए हैं वर्ल्ड ओवर, जिसमें प्रीडेटरी जर्नल्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके लगाए गए। तो बील्स लिस्ट बहुत कॉमन है। बील्स लिस्ट, ये जो बील्स लिस्ट है, इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी रही, और अल्टीमेटली बील्स लिस्ट की जो वेबसाइट है इसको भी डाउन कर दिया गया, है ना। तो हमने क्या किया, उसको web.archive.org से जाके हम निकाल सकते हैं किसी भी वेबसाइट का पुराना फॉर्मेट। तो वहीं से web.archive.org से हमने बील्स लिस्ट को एक्सेस कर लिया। तो एक ये वेबसाइट है पार्टिसिपेंट्स predatoryjournals.com/publishers, तो यहाँ से आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है। I hope you would like to visit that list of journals also and the publishers. तो अभी दिखाते हैं आपको, वो लिस्ट भी शो करेंगे। और जो प्रेडेटरी जर्नल वाला इशू है, ये केवल डेवलपिंग नेशंस के अंदर नहीं है, ये डेवलप्ड नेशंस में भी है, राइट। सो जनरली द नेव रीडर्स आर नॉट द ओनली विक्टिम्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स को भी इन लोगों ने धोखा दिया है। So one study that focused on 46,000 researchers based in Italy found that 5% of them have published in such outlets. So ये इटली का डेटा है, 46,000 रिसर्चर्स को उन्होंने स्टडी किया, तो पता लगा कि 5% people have been duped by the predatory journals, right? और millions of dollars are collected world over in the predatory journals. So we need to be very careful about it. चलिए अभी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं कि कैसे predatory journal आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसके ऊपर हमें काम करना है। तो कुछ थियोरेटिकल पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ। दिस पीपीटी आई विल बी शेयरिंग विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जल्दी से समझते हैं कि प्रेडेटरी जर्नल की गेम से कैसे बचना है। तो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव एक्चुअली आइडेंटिफाइड द लिस्ट ऑफ प्रेडेटरी जर्नल्स, राइट। सो देयर आर 1135 जर्नल्स व्हिच आर एक्चुअली लिस्टेड इन बील्स। केबल्स ने अपनी लिस्ट निकाली थी, केबल भी एक हमारे पास डायरेक्टरी सर्विस है, तो केबल ने भी आइडेंटिफाई किया 10,000 जर्नल्स इसने आइडेंटिफाई किए। बट इन 10,000 और इसके 1135 में 228 कॉमन जर्नल्स भी थे, राइट। तो इन दोनों की लिस्ट में कुछ ओवरलैपिंग है। उधर केबल ने वेरीफाइड जो लिस्ट निकाली अपनी, उसके लिस्ट के अकॉर्डिंग 10,000 समथिंग जर्नल्स हैं। इधर डीओएजे के जो जर्नल्स हैं उनका इधर लिस्ट है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कहीं भी एक कॉमन सिस्टम निकल के नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन लिस्ट ऐसी नहीं बन के आ रही जिसको हम पूरी तरह से कह दें कि पूरी तरह से ऑथेंटिक है, राइट। तो दोनों कैटेगरीज में, जहां पे हमारी प्रेडेटरी जर्नल्स की लिस्ट है और जहां पे हमारे पास लेजिटिमेट जर्नल्स की लिस्ट है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो कोई भी लिस्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हमारे पास 100% श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो बील्स लिस्ट के 1135 जो जर्नल्स हैं, उसमें केबल के भी काफी सारे हैं, बट साथ ही साथ इसमें देखें कि डीओएजे के भी कुछ जर्नल्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। करीब करीब 34 जर्नल्स हमारे पास यहाँ हैं, जो कि बील्स ने रखे हैं प्रेडेटरी की लिस्ट में और डीओएजे ने रखा है लेजिटिमेट की लिस्ट में। बिल्कुल ऐसा ही डीओएजे और कैपेल के आपस में जो वेरीफाइड वाले जो जर्नल्स हैं, उसमें केवल 979 ही कॉमन है, बाकी केबल की अपनी लिस्ट है और डीओएजे की अपनी लिस्ट है। तो यहाँ पे भी एक हमारे पास चैलेंज ये आता है दैट
there is no standard mechanism available till date which can define which particular journal is credible, which one is not. So ये हमारे लिए एक हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगी जब तक हमारे पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा ना बन जाए. The governments and the agencies world over, they are trying their level best. They are trying to find out the different parameters, how they can define, how they can identify a particular journal, whether it is predatory or not. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और कॉन्सेप्ट है रिसर्चर्स के लिए बड़ा कॉमन है, दैट इज कॉल्ड हाईजैक्ड जर्नल. हाईजैक जर्नल क्या होता है? हाईजैक जर्नल कोई बताएगा मुझे चैट में आके? व्हाट इज हाईजैक्ड जर्नल? यस प्लीज, चैट में आके बताइए एक बारी. नो आइडिया. ओह, hacked. Very good. Deepika is saying hacked. There are many journals which are legitimate. Legitimate journal है, चल रहा है बड़े अच्छे से, पब्लिशर उसको प्रिंट करता आ रहा है लगातार. बट प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ समय के बाद कुछ लोग, मेलिशियस इंटेंट वाले लोग क्या करते हैं, उस जर्नल की एज इट इज रेप्लिका बना देते हैं. एज इट इज रेप्लिका, पूरे जर्नल की एक वेबसाइट, और उस वेबसाइट के ऊपर आपसे वो पूरा पेपर का अपलोडिंग मांग लेंगे. ये देखिए आपके सामने एक वेबसाइट, शायद मेरी स्क्रीन विजिबल है, चैट में आके यस कीजिए. अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो चैट में आके यस कीजिए. जोकुल जर्नल, ये जोकुल जर्नल की वेबसाइट है आपके सामने. स्कोप एंड पॉलिसी मिल रहा है, जर्नल इंफॉर्मेशन बता रहा है, आइसलैंड का है, ISSN नंबर भी दिया हुआ है. इंटरेस्टिंग चीज देखिए, 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर 0.471, इंडेक्स कॉपरनिकस, ये पूरा आपके सामने है. वेबसाइट का नेम है jokuljournal.com. एक और वेबसाइट देखिए, Jokul Journal of Earth Sciences, published by the Iceland Glaciological Society and Geosciences Society of Iceland. ये दूसरा वेबसाइट, क्या लगता है कौन सी साइट जेन्युइन है, कौन सा फेक है? दोबारा देख लीजिए. एक ये वेबसाइट है, एक ये वेबसाइट है. ये ब्लू वाला लग रहा है या फिर ये पिंक वाला लग रहा है आपको? वेबसाइट विद द माउंटेन, वेबसाइट विद द माउंटेन लुक्स गुड, या दूसरा वाला .com इज फेक? ओके, कैसे पता लगाएंगे? How do we find it out? Especially when the website is in the foreign language, things are little difficult here. Journal of Technology, Scopus में है, EI Compendex में है. How will I find it out? एक सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको. एक वेबसाइट है शिमागो JR. शिमागो JR ओपन कर लीजिए. यहां पे जाके सर्च कीजिए. ओके, जोकुल जर्नल तो इसमें है ही नहीं. और कोई भी जर्नल अगर आपने चेक करना है, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूं, एक मेरा ये फेवरेट जर्नल है, इसमें मेरे 2 पेपर्स हैं. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजिक्स, क्लिक कर देते हैं. IGA ग्लोबल का जर्नल है. इट इज पब्लिश्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. ये है पूरा स्कोपस का एक पोर्टल है, शिमागो. दिस गिव्स यू द रैंकिंग ऑफ द जर्नल्स country wise, right? And it is giving you many more insights about that particular journal. H-index, it is showing 12, coverage 2010 to 2020, so बिल्कुल recent coverage है. ये देखिए एक और एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ रहा है, UGC approved journal, JETIR. पता नहीं कैसा जर्नल है, मुझे नहीं पता. I will have to open that.
और देखिए आगे, फाइंड सिमिलर जर्नल्स, कुछ और जर्नल्स का हमें आइडिया दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल डॉक्यूमेंट्स, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ तक मेरा पब्लिकेशन चल रहा है। ये मेरे पास SGR रैंकिंग आ रही है, टोटल साइटेशंस पता लग रहे हैं, साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट भी पता लग रहा है ना। सो इट शोज दैट द जर्नल इज क्वाइट ऑथेंटिक। पूरा डिटेल मुझे इसका यहाँ पे मिल रहा है। Q2 में है, Q2। तो जब हम जर्नल फाइंडर की एक और वर्कशॉप है मेरी आपके साथ में, शायद 1 जुलाई 2 जुलाई को। सो विल हैव अ डिस्कशन ओवर देयर, हाउ टू सेलेक्ट द राइट जर्नल फॉर योर पब्लिकेशन, तो वहाँ पे बात करेंगे। और फिलहाल अपना जो डिस्कशन है इसको यहीं पे रोकेंगे हम। ओके। और ये जो है आपके पास जर्नल, जर्नल का पब्लिशर है IGI ग्लोबल, राइट। जर्नल की साइट पे चल देते हैं एक बारी, जाके पता लगाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। जर्नल की साइट पे चलते हैं, किधर गया वापस, हाउ टू पब्लिश इन दिस जर्नल, एंड ये हमारे पास होम पेज भी है। ये मान के चलिए कि जो स्कोपस में जब जर्नल अपनी इंफॉर्मेशन देता है तो वहां जेन्युइन इंफॉर्मेशन ही देता है। प्रीडेटरी जर्नल वाला स्कोपस में अपनी इंडेक्सिंग नहीं करा पाता है। तो आपके लिए ये एक बहुत ही आसान तरीका है टू आइडेंटिफाई विच वेबसाइट इज जेन्युइन, क्या ये हाईजेक्ड है कि नहीं है। ये हमारा हाईजेक नहीं है, ये आपका IGI ग्लोबल की साइट है, ग्लोबल पब्लिशर है, उसी की वेबसाइट है, IJT इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टेक्नोएथिक्स है। ठीक है, क्लैरिवेट में और ESCI का इंडेक्सिंग है जर्नल का। और मुझे यहाँ पे सारी डिटेल मिल रही है, इसकी प्राइसिंग कितनी है, राइट। और एडिटोरियल बोर्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और साथ में इसका एडिटर कौन है ये सब पता लग गया मुझे। एब्स्ट्रैक्टिंग पता लग गया, एब्स्ट्रैक्टिंग कहाँ कहाँ पे है इसका, दैट इज ऑल अवेलेबल। और इंटरेस्टिंग एक चीज अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ओपन एक्सेस है कि नहीं है, ओपन एक्सेस, राइट। सो इट इज नॉट फ्रॉड, बट इट इज हैविंग द ओपन एक्सेस सिस्टम आल्सो। और ये भी अच्छी बात है, देखिए यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग इज पॉसिबल हियर, यहाँ स्कोपस बता रहा है, UGC पीयर बता रहा है, वेब ऑफ साइंस भी बता रहा है। सो योर जर्नल इज क्वाइट गुड। और और आगे चलना है और इसकी जेन्युइननेस पता करनी है तो क्लिक कर दीजिए स्कोपस की लिस्ट पे। स्कोपस की साइट पे जाके भी पता कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये मेरे पास ओपन एक्सेस वाला सिस्टम मैं चेक करना चाह रहा था कि इसका ओपन एक्सेस का क्या सिस्टम है। आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस देख लीजिए, इसका है हाइब्रिड ओपन एक्सेस मॉडल, ये बता रहा है अपना। किधर गया, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस ये है इसके पास दिया हुआ। यहाँ प्राइस दिया हुआ है 2,000 US डॉलर, that must be paid after the manuscript has gone through the fully double blind peer review process, right। तो पूरा आपका ये चेकिंग मॉनिटरिंग कराएगा, उसके बाद में 2,000 US डॉलर यू हैव टू पे, राइट। सो दैट गिव्स यू ए फेयर आइडिया कि आपका जो जर्नल है वो कैसा है। अच्छा, क्रॉस वेरिफिकेशन अगर और करना चाहते हैं फर्दर एक और, तो स्कोपस की साइट पे जाएं, स्कोपस की साइट पे चलते हैं। शिमागो JR से अगर पूरी तरह से हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो हमने जर्नल की साइट भी देख ली, पब्लिशर की साइट पे भी जाके देख लिया। और जर्नल की जो वेबसाइट है, यहीं पे आजकल जितने भी गुड क्वालिटी जर्नल्स, दे आर हैविंग देयर ओन सबमिशन सिस्टम आल्सो, ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम। तो यहीं से आपने लॉगिन करना है, या फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ होगा जर्नल की साइट पे। जस्ट वन मोमेंट, ये मेरे पास जर्नल था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन देगा मुझे हाउ टू सबमिट टू दिस जर्नल, ये सबमिट टू द IJT। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू रीच आउट टू द जर्नल डायरेक्टली विदाउट एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ये हम आ गए अपने स्कोपस की साइट में। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल। स्कोपस की साइट है ये, यहाँ पे आके हम चेक कर सकते हैं सोर्सेस पे।
सोर्सेस पे गए और यहाँ पे टाइप कर देते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है टाइटल, टाइटल में था टेक्नो एथिक्स, टेक्नो एथिक्स, ये आ गया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टेक्नो एथिक्स। ये है मेरे पास जर्नल की इंडेक्स लिस्टिंग, क्लिक कर देते हैं, इट विल गिव मी द फर्दर डिटेल्स। स्कोपस की साइट पे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टेक्नो एथिक्स का पूरा डिटेल शो कर रहा है। साइट स्कोर बता रहा है इस वेबसाइट का, इस जर्नल का 1.8 साइट स्कोर है। साइट स्कोर ट्रैकर भी शो कर रहा है 2017 से लेके 2020 तक का 3 इयर्स का जो साइट स्कोर है, दैट इज बीइंग शोन हियर। ओके, so percentile also it is showing how much is the rank, 120 out of 334 journals in Scopus on social sciences. इंजीनियरिंग में अगर इसको चेक करेंगे तो इट इज 38 आउट ऑफ 77। पूरी डिटेल आपको मिल गई। नाउ वी कैन बी श्योर, ये देखिए आपके पास सारे स्कोर आ रहे हैं, साइट स्कोर आपको मिल रहा है। तब पता चल गया कि जो जर्नल है दैट इज नॉट फेक, प्रेडेटरी तो नहीं है। पैसे मांग रहे हैं ओपन एक्सेस करने के, बट इट इज नॉट प्रेडेटरी। एनी डाउट हियर? What range of site score is good? Definitely for the beginners, it can be starting from 1.0. 1.0 से अगर आपका शुरू होता है तो it is considered to be good. रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जनरली जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर आस्किंग फॉर स्कोपस इंडेक्स पब्लिकेशन। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको अपना इम्पैक्ट फैक्टर देखना पड़ेगा, साइट स्कोर चेक करना पड़ेगा। साइट स्कोर एक्चुअली इट शोज यू द 3-year citation एवरेज, कितने पेपर्स पब्लिश हुए थे इस जर्नल के अंदर और उनमें से कितने साइटेशंस हुए हैं। तो अगर मान लीजिए 50 पेपर्स पब्लिश हुआ 3 साल के अंदर और 3 साल में 50 ही इसको साइटेशन मिल गए जर्नल को, तो साइट स्कोर इज 1। सर विच वन इज बेटर, पेड और फ्री? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी पेड और फ्री दोनों के बारे में। अगर आपको ओपन एक्सेस में पे करने का आपके पास में ऑप्शन है, यू हैव द फंड्स, अगर कोई स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, स्पेशली इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट अगर है, तो इट इज नो हार्म गोइंग फॉर द ओपन एक्सेस, तो पेमेंट करने से भी कोई बुराई नहीं है। सर प्लीज ऑल्सो डिस्कस यूजी से अप्रूव जर्नल लिस्ट। इसके बारे में एक स्पेशल सेशन है हमारा, फाइंडिंग द राइट जर्नल फॉर योर पब्लिकेशन, तो वहां पे करें। वहाँ इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आपके साथ, 2 दिन के बाद है वो सेशन। अभी फटाफट जरा प्रीडेटरी को खत्म कर लेते हैं। इट गिव्स एन आइडिया हाउ गुड द जर्नल इज, राइट? यस डेफिनेटली, इससे पता लगता है आपको, आपको साइट स्कोर से पता लग जाता है। चलिए थोड़ा थोड़ा मैं और कंटेंट आगे डिस्कस कर लेता हूँ, इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। हाईजेक जर्नल जिसकी हमने बात की कि एक ही नाम से किसी बंदे ने दूसरा बिल्कुल फेक प्रोफाइल बना डाला, फेक वेबसाइट, सेम लोगो, और क्लेम कर रहे हैं दैट वी आर द जेन्युइन वंस, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये देखिए मेरे पास एक जो ईमेल आई थी काफी टाइम पहले, 6 साल पुराना है, देखिए जरा। आई होप यू कैन रीड दिस। I submitted one of my manuscript study of the knowledge management models and their relevance in the organizations. So that was done in 2015 March, है ना। और 2-3 राउंड इन लोगों ने मुझे फिर ईमेल लिखा कि आपका आ गया है, एक्सेप्ट कर लिया है, रिव्यू के लिए भेज दिया है, और उसके बाद पता चला कि आई विल हैव टू पे फॉर इट, राइट। सो दे आर आस्किंग फॉर द पेमेंट, तो बार बार मुझे मैसेज कर रहा है पेमेंट कर दीजिए। इफ यू पेड द पब्लिकेशन फी एंड अपलोड द फाइनल वर्जन ऑफ योर पेपर, तो ये ट्रांजेक्शन आईडी दे दीजिए, या मैन्युस्क्रिप्ट विल बी पास टू द पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। सो दैट इज द प्रीडेटरी जर्नल, कश्मीरा जर्नल। इंटरेस्टिंगली देखिए इसका जो सेंडर ईमेल आईडी है office@kasmirajournal.com, ये भी शायद आपको दिख रहा होगा, office@kasmirajournal.com। एक बार इसको हम साइट को ओपन कर लेते हैं। काश्मीरा जर्नल, ये देखिए काश्मीरा जर्नल अभी तक चल रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है। ये देखिए ये है वो फेक वेबसाइट काश्मीरा जर्नल। अगर आप आज भी
कुछ पैसे ज्यादा हैं, यू वांट टू डोनेट, यू वांट टू वेस्ट द मनी, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ इट। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। इट इज सेइंग इवेंट स्कोप बता रहा है आपको। एडिटोरियल कौन है भाई? एडिटोरियल बोर्ड भी इसने बता दिया। और SGR की साइट पे जाके देखते हैं, ये H इंडेक्स 6 कवरेज 2008 से लेकर 2017 तक है। ISSN नंबर 5222 आ रहा है लास्ट में 0075। लेट अस सी हाउ अबाउट इट। इस साइट पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है DOAJ में है, और यहाँ इंडेक्स थॉमसन रियूटर्स। ग्रेट। ये कब पब्लिश हुए थे ये नहीं पता। लेटेस्ट पब्लिश्ड आर्टिकल्स कब पब्लिश हुआ, कहाँ पब्लिश हुआ, बताया नहीं इसने। ये देख रहे हैं आप, इसका कवर भी पता नहीं कौन से जमाने का लगाया है। 2021 लिखा हुआ है, वॉल्यूम 49 नंबर 2। जब आप अगर रेगुलर पब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ स्कोपस की साइट पे क्यों नहीं दिख रहा मुझे? क्यों नहीं आ रहा कवरेज 2017 के बाद का? नया पब्लिकेशन आपका आ ही नहीं रहा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन 0 हो गए आपके। SGR रैंक 0.1 आ गया है। क्यों? क्योंकि 3-4 साल से जर्नल प्रिंट ही नहीं हो रहा है। साइटेशन भी देखिए एकदम से डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। टोटल डॉक्यूमेंट्स देखिए 2018 के बाद से 0 हो गए। मींस द जर्नल इज नॉट फंक्शनल, बट दिस वेबसाइट इज क्लेमिंग दैट इट इज फंक्शनल। We need to be very careful about such websites. सेम आईडी कैसे यूज कर सकते हैं ये जर्नल्स? हाँ, सेम आईडी तो नहीं यूज करते हैं ये। दे आर एक्चुअली प्लेइंग विद द नेम kasmirajournal.com, kasmirajournal.net, kasmirajournal.org, kasmirajournal.nin। कौन रोकता है? kasmira original journal.com, kasmira fake journal.com, कोई भी नाम रखिए, nobody stops you. So that is one more area that we need to be very careful about it. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो कश्मीरा जर्नल की स्टोरी तो हमने देख ली, रियल टाइम केस स्टडी। ये बिल्स लिस्ट जिसकी मैंने बात की थी, दिस वेबसाइट वाज क्रिएटेड बाय जेफरी बील, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, अंटिल 2017 जनवरी। और उसके बाद में कुछ इश्यूज आ गए थे इनके अगेंस्ट, काफी सारे जर्नल्स ने कंप्लेन कर दिया, तो देयर वाज ए केस ऑफ मिसकंडक्ट दैट वाज रिपोर्टेड टू हिम, सो दिस लिस्ट हैड टू बी क्लोज्ड। बट उसके बावजूद भी कोई मेजर इशू नहीं बना। सो दिस जेंटलमैन जेफरी बील, ही वाज एक्चुअली freed, he was acquitted. After the closure, other efforts to identify the predatory journals have sprouted. काफी सारे लोगों ने कोशिश किया, केबल्स ब्लैकलिस्ट को भी आइडेंटिफाई किया गया, और भी कई सारे लोगों ने अपने अपने ब्लैकलिस्ट रेडी किए हैं, राइट? सो bealslist.net, that will give you the great idea. So what are the tricks that we are talking about? कि तो आपका गूगल स्कॉलर से आपका आईडी उठा लेते हैं लोग, and many have set up seemingly legit websites and they are sending journal call for paper emails also. हम लोग के पास call for paper का email आता रहेगा, and they send the flattering and highly personalized emails to the author. वो आपका कहीं से उठा लिया, गूगल से चेक कर लिया कि भाई डॉक्टर मित्तल हैज एक्चुअली पब्लिश्ड वन रिसर्च पेपर इनटू साइबर क्राइम, तो मेरे पास ईमेल आएगा कि भाई वी फाउंड दैट यू हैव पब्लिश्ड ए वंडरफुल स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन दिस पर्टिकुलर जर्नल, सो वी वुड इनवाइट यू टू पब्लिश इन आवर जर्नल आल्सो। आवर जर्नल इज हैविंग द हाई इंपैक्ट फैक्टर। अभी हाई इंपैक्ट फैक्टर वाला जो गेम है, दैट इज आल्सो क्रिटिकल। सो हाउ दे आर एक्चुअली बी फूलिंग अस। सो आपको वायदा करेगा 4 से 6 हफ्ते में हम आपको पब्लिश करके देंगे, है ना? क्विक पब्लिकेशन, एंड दैट क्विक वर्ड इज एक्चुअली exciting for most of the researchers, right? And offline also they might be having the counterfeit copy of the journal, and online also they can create the PDF files, or they might be having a full website that I was talking about. तो बहुत सारे हमारे पास मीट्रिक्स, देखो बहुत सारी कंपनीज भी ऐसी हैं जो कि जर्नल चलाती हैं, बहुत सारे आपके पब्लिशर्स ऐसे हैं जो फेक जर्नल चलाते हैं, और कई सारे इंडेक्सेस भी हैं। सो स्कोपस और वेब ऑफ साइंस आर नॉट ओनली 2 मेजर इंडेक्सेस, उसके अलावा और भी तो दुनिया भर के इंडेक्सेस चला रखे हैं लोगों ने। तो सिंपल बहुत सारे जर्नल्स को अट्रैक्ट करते हैं दैट यू शुड एक्चुअली इंडेक्स योर जर्नल विद अस,
and these people, they are actually serving a great opportunity to the predatory journals. So predatory journal वाला जाएगा, indexing कराएगा, अपनी साइट पे उनका नेम डालेगा that my journal has been indexed by 5 or 10 different bodies, 5 or 10 different indexes. तो ये indexes भी बहुत सारे fraud हैं, तो we need to be very careful about that. So these companies, they will actually charge money from the journals. ये भी फ्री में काम नहीं करते, ये सारे जर्नल्स को पैसा मांगेंगे कि भाई हमारी साइट पे अगर आपने अपना इंडेक्सिंग कराना है तो उसका $10,000 $20,000 यू हैव टू पे फॉर इट। और अगर आपको हाई वैल्यू दिखानी है अपने जर्नल का तो हम आपको इम्पैक्ट फैक्टर भी इशू कर देंगे, और इम्पैक्ट फैक्टर भी हाई लेवल का इशू कर देंगे, and for that you will have to pay extra. So that is all paid listing, right? So what they are doing, they are going to the Google Scholar database and they are actually barging into the predatory journals also, right? So impact factor का नाम लेते हैं और उस impact factor के चक्कर में many of us are actually befooled by them. So whatever the method they are giving for the citations और impact factor ये अपना जो बनाते हैं उसका कोई scientific method नहीं है। किसी भी जर्नल को जो मर्जी दे दिया, किसी को 5.2, किसी को 5.9। एक तो जर्नल ऐसा मैंने देखा जिसने क्लेम किया that my impact factor is 7.8 impact factor। पता नहीं कहाँ से आया, पता नहीं कौन से इंडेक्स ने आपको दे दिया इम्पैक्ट फैक्टर। वर्ल्ड ओवर जो सबसे ज्यादा कॉमन इम्पैक्ट फैक्टर है दैट इज डिराइव्ड बाय थॉमसन ड्यूटर्स। तो थॉमसन ड्यूटर का जो इम्पैक्ट फैक्टर है दैट कैरीज द हाईएस्ट वेटेज। उसके बाद साइड फैक्टर वगैरह भी चलते हैं, एसजीआर रैंकिंग भी चलती है, और भी कई सारे हैं, बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज इंडेक्सेस। चलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। एक लिस्ट मैंने इसका पूरा डाउनलोड किया है एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। These are the indexes which are having many of the fraud journals on their index. AE Global Index, Site Factor, Arab Impact Factor, Cosmos Impact Factor, Infobase Index. अब इनमें से मैं सबको मैं ये claim नहीं कर रहा that all of them are fake, but these are suspicious. These are suspicious indexes which are giving impact factor to many of the journals. And many of the journals are simply making a payment and they are listing themselves there. So we need to be very careful. And जब हमारे पास में तरीका है, ये जब साइंस के लिए वेब ऑफ साइंस चलता है, स्कोपस भी चलता है, और स्कोपस और वेब ऑफ साइंस दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटी सी लिस्ट है उसकी, दे आर हैविंग मोर देन 10-15,000 जर्नल्स लिस्टेड। तो जब 10-15 हजार अच्छी क्वालिटी के जर्नल्स अवेलेबल हैं, देन व्हाई वी आर फॉलिंग प्रे टू द प्रेडेटरी जर्नल्स? सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ और लगता है मुझे जो कुछ फ्रॉड जर्नल्स हैं, तो एक बार शायद इनकी साइट देख लेते हैं तो आपको और थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। जस्ट वन मोमेंट प्लीज। कि जोकुल जर्नल तो हमने डिस्कस कर लिया था, कोप की वेबसाइट है। एक ये लिस्ट है predatoryjournal.com जिसकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, predatoryjournal.com। यहाँ पब्लिशर्स की लिस्ट लगी हुई है सारे। These are the publishers which are found to be suspicious। ये देखिए, ये मुझे लगता है कि this particular publisher is totally fake। इनोवेटिव स्पेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जर्नल। इनके जर्नल्स को एक बार विजिट कर लिया जाए तो हमें थोड़ा और आइडिया लगेगा। ये है वो जर्नल, ऊपर देख लीजिए आपको SJIF 3.89 मिल रहा है, इम्पैक्ट फैक्टर शो कर रहा है 2.9। लेफ्ट साइड पे देखिए एम एंड स्कोप, टॉपिक कवर्ड, बहुत कुछ अच्छी सा। वेबसाइट तो लेजिटिमेट लग रहा है, क्या सचमुच में लेजिटिमेट है या नहीं? Publication fee for all the accepted articles is 80 USD। 80 USD you have to pay, and इंडियन करेंसी के हिसाब से 2130 रुपया। बड़ा सस्ता सा काम है। इंटरेस्टिंग। ये जर्नल पब्लिश क्या करता है ये देखिए, इससे बड़ा अच्छा आइडिया लगेगा ये जर्नल का एक्चुअली स्कोप क्या है। एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, ये कहाँ से आ गया? फाइनेंस भी है, अकाउंटिंग भी है,
हेल्थ प्रोफेशन, वेटरनरी साइंस, सोशल साइंस, क्या भाई एनसाइक्लोपीडिया बनाना है क्या हमें, या विकीपीडिया पब्लिश कर रहे हो आप? देयर इज नो विजन, नो टारगेट। ये जर्नल कौन देखेगा, कौन पढ़ने वाला है? इम्पैक्ट फैक्टर देखिए, इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट फैक्टर शो कर रहा है कंटिन्यूअस, हर साल का दिखाता जा रहा है आपको। RGJI, ये क्या है RGJI? क्लिक कर लेते हैं, रिसर्च गेट का दिखा रहा है, रिसर्च गेट में इसका शो कर रहा है। क्या रिसर्च गेट एक लेजिटिमेट इंडेक्स है जिसके इम्पैक्ट फैक्टर की कोई वैल्यू होगी? रिसर्च गेट itself it is a blog on which people are coming, they are sharing their research and there might be some citations, कुछ हो सकता है लोग एक दूसरे को citation देते हो, but it can never be claimed to be the legitimate source of citations. SJIF ये क्या है? ये देखिए SJIF, ये कौन सा जर्नल, ये कौन सा आपके पास इंडेक्सिंग आ गया? साइंटिफिक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर। इंटरेस्टिंग बताऊं मैं आपको, ये साइंटिफिक जर्नल वाला असल में ये थी वेबसाइट, शिमागो। ये शिमागो है, शिमागो का मतलब यही है, ये देखिए क्लिक करके इसे, ये साइंटिफिक जर्नल्स के लिए बनाया गया था। बट व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर मेकिंग फूल ऑफ द रिसर्चर्स। ये देखिए एक और इंडियन वेबसाइट, इंडियन एकेडमिशियंस एंड रिसर्चर्स एसोसिएशन, क्या करके मानेगा भाई ये, सो मेनी जर्नल्स दे आर हैविंग। ये देखिए इनका जर्नल IARA, ये इनका जर्नल है, UGC का मोहर लगा है ऊपर, पता नहीं ये सचमुच में कितना लेजिटिमेट है या नहीं। UGC की साइट पे जाके चेक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इम्पैक्ट फैक्टर 4.12, 4.12। और इस जर्नल को अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ, एक मिनट देखिएगा, इसको मैं यहाँ से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एंड इनोवेटिव रिसर्च, फिर तो SJR में आना ही चाहिए जब इतना 4.4 से अबव दिखा रहा है ना। क्या नाम था इसका, एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे। एक और ये जर्नल है हमारे पास, ब्रिटिश जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स फाइनेंस, इसको बंद कर देते हैं हम। ये रहा इंडियन एकेडमिशियंस, अच्छा ये तो एसोसिएशन था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एंड इनोवेटिव रिसर्च, जर्नल ऑफ एडवांस इनोवेटिव रिसर्च। कुछ आना चाहिए, देखते हैं। नो रिजल्ट्स वर फाउंड, सरप्राइजिंग। 4.2 जो क्लेम कर रहा था अपना इम्पैक्ट फैक्टर, ये स्कोपस में ही नहीं है, जबकि स्कोपस के बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत कम होता है, इनफैक्ट 1 से भी कम होता है। स्कोपस की साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, पूरी लिस्ट आ जाती है, यू विल बी एबल टू सी बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जिनका जो इम्पैक्ट फैक्टर है दैट इज लेस देन 1, और बहुत सारे तो ऐसे जिनका इम्पैक्ट फैक्टर है ही नहीं, बट स्टिल दे आर ऑन स्कोपस। सो ये जो महान जर्नल है विच इज क्लेमिंग टू बी मोर देन 4, so its whole existence is questionable. So बहुत सारे जर्नल्स हैं फ्रेंड्स which might be fake. So fake publishers की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। पॉसिबली फेक जर्नल एक और हमारे पास, ये देखिए ब्रिटिश जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स फाइनेंस एंड मैनेजमेंट साइंसेस, बड़ा अच्छा सा लग रहा है देखने में वेबसाइट, बट एक बार साइट विजिट करिएगा। ये आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस के लिए मैंने आपको छोड़ दिया, आई एम नॉट गोइंग टू विजिट दिस वेबसाइट टुडे। आप लोग खुद देखिएगा, आपको पता लगेगा जर्नल कितना अच्छा है कितना खराब है। तो ये एक अच्छी तरीका क्या है पता लगाने का किसी भी जर्नल का, किसी भी जर्नल की वेबसाइट पे जाइए, गो एंड चेक अबाउट द जर्नल, अबाउट द जर्नल से फोकस पता लग जाएगा। ज्यादातर जो पेड जर्नल होंगे दे विल नॉट बी हैप्पी विद ओनली वन सब्जेक्ट एरिया, तो वो क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम मल्टीपल रिसर्च डोमेन्स। सो जो भी जर्नल इतने सारे डोमेन्स का अगर पब्लिश कर रहा है तो मतलब जर्नल का खुद का फोकस ही कुछ नहीं है, इसका कोई एम नहीं है, स्कोपस नहीं है, स्कोप नहीं है, तो वी शुड एक्चुअली अवॉइड सच जर्नल्स।
So some journals have more broad criteria, but अभी as a researcher हम लोगों के लिए अच्छा तरीका क्या है, that we need to identify which particular journal is matching with my subject area. तो अपने subject area से related ही journal में आप publish करें. Don't go for the multidisciplinary research journals like this. हैं बहुत सारे multiple disciplinary भी होते हैं, but try to focus on those journals which are actually directly connected with your research domain. तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जर्नल्स की जिसको आप विजिट करके यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. सो इट इज योर ओन जॉब. जैसे कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड रिसर्च, आई हैव गॉट 3 publications in this journal also. So I found that this journal is having quite a broad scope, but I checked, I verified all the credentials. तो इंटर साइंस का है, ये तो सबसे अच्छा एक मेरा सबके लिए एडवाइस जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ मीटिंग में, that you should actually send your manuscript only to the known publishers. जो branded publishers हैं वहीं पे publish करिए. unknown publishers के पास जाना हमेशा रिस्की रहेगा. So इंटर साइंस बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल तो नहीं है, but it is quite okay. Similarly, IJ Global for the researchers in the beginning phase, IJ Global is also good. और थोड़े से आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं, then you can target Emerald, you can go for Taylor and Francis, you can target for Springer, or maybe you can go for many others, like Elsevier is there, so many other branded publishers are there, so you can target them. तो शुरुआत भी जब करें तो अपना जो पब्लिकेशन है वो किसी भी फेक जर्नल के पास हमें सबमिट नहीं करना. So this open access story we have already discussed कि जहाँ पे पेमेंट आपको करना होता है as an author, so it is not always a good idea, and it is always not a bad idea also. Okay. So I was talking about the publication cost. So open access, the amount is huge, but being from the developing nation, we can always request these good quality journals, good quality open access journals. We can write an email that, okay, I am a PhD scholar and I'm not having any funding for publication in this open access, so I would request you to remit or give me some discounts. So the discounts are possible, so you can go for it. So it will help you in getting your article published. So the website like Emerald I was talking about, so Emerald is having its own manuscript central, so through which you can actually submit your publication without any major problem. And whenever you are actually submitting your manuscript, so you should check the confirmation email also very carefully, because on the confirmation email they will be actually sharing that email ID, and you should check whether the email ID is authentic or not, and whether the language that has been written on the website as well as on the thanks email, you should check that whether it is error free. बहुत सारे तो ऐसे fraud journals हैं which don't know how to write English also, so there will be spelling mistakes, there will be English grammatical mistakes, so that will actually give you an idea that this journal could be a fake one. So prompt acknowledgement should be there. Time-bound review process. So on the websites of the journals, you will find the proper description that, okay, this particular journal will take 4 months, 6 months, whatever the time is. So we should be very careful about it, because these predatory journals generally they are not able to go for the standard portal. So standard portal होगा नहीं, वहाँ पे simply ये क्या कर देते हैं कि they will be having a login ID creation, and they will ask you to upload the PDF file, and then they will simply give you a thank you message. तो इनके पास प्रॉपर एक मैन्यूस्क्रिप्ट हैंडलिंग वाला जो प्लेटफॉर्म है वो होता नहीं है. If you have actually submitted your paper to some legitimate journal, तो you would have experience के पेपर सबमिट करना अपने आप में 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है एक अच्छे जर्नल में अगर आप भेज रहे हैं तो. They will ask you so many stories, वो आपको ऑथर का नेम, फिर रिव्यूअर्स का भी आपसे रिकमेंडेशन मांगेगा, कीवर्ड्स मांगेगा, और इमेजेस वगैरह मांगेगा, सारे टेबल्स वगैरह अलग से मांगेगा. They will have a thorough process. But predatory journal ये तो आपको फील गुड देने के लिए बनाया है. तो फील गुड कैसे आएगा? क्विक एंड इजी सबमिशन प्रोसेस. क्विक एंड इजी, अपने अकाउंट दीजिए, शायद क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी मांग ले, और शायद आपसे पीडीएफ फाइल अपलोड कराए, और थैंक यू मैसेज तुरंत आ जाएगा. 2 से 3 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट अगर प्रोसेस हो जा रहा है, तो इट मींस दैट देयर इज समथिंग फिशी. There is something fishy. They are not preparing their metadata. They are not preparing their full profile of that particular manuscript also. So we need to be very careful about it.
and whatever the progress is, that should be visible on the portal में ज्यादातर आजकल ट्रैकिंग का भी आपको ऑप्शन देता है, बट ये प्रीडेटरी वाला बेचारा या अफोर्ड ही नहीं कर रहा है ये अच्छी क्वालिटी का मैन्युस्क्रिप्ट हैंडलिंग सॉफ्टवेयर, सो दे विल नॉट बी एबल टू गिव यू द ट्रैकिंग सर्विस। सो ट्रैकिंग का वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दे ही नहीं पाएगा। देगा भी तो सिंपल, आज आपने सबमिट किया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद सीधा आएगा, योर आर्टिकल हैज बीन एक्सेप्टेड, नाउ यू हैव टू प्रोसीड विद द पेमेंट एंड नाउ वी आर सेंडिंग इट फॉर पब्लिकेशन ऑल्सो। तो या तो मैं ये मान लूं कि भाई आपका जो आर्टिकल है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, सारे रिव्यूअर्स को पसंद आ गया, 10 20 50 रिव्यूअर्स तक आपका पेपर सेंड किया गया, रातों रात वो लोग बेचारे खाली बैठे थे, वेट कर रहे थे कि कब सौरभ मित्तल का आर्टिकल आएगा, कब हम उसको अपना पॉजिटिव फीडबैक दें। तो 2 दिन में 3 दिन में उसने सारा रिव्यू प्रोसेस भी कंप्लीट कर दिया, मुझे ईमेल भी आ गई और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी हो गया, पेमेंट भी कर दिया और मुझे थैंक यू आ गया। तो मतलब we need to be very careful whether the article is properly being screened or not। एडिटर ने कुछ स्क्रीनिंग किया नहीं किया, इंग्लिश लैंग्वेज में एरर तो नहीं थे, कहीं मेरा साइटेशन वगैरह तो गड़बड़ नहीं किए थे, टेबल्स वगैरह की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, इमेजेस मेरे हाई रेजोल्यूशन में है कि नहीं है। इफ द जर्नल इज नॉट चेकिंग ऑल दीज बेसिक्स ऑल्सो, देन इट मीन्स दैट इट इज ए फेक जर्नल। स्कोपस की साइट का भी हमने एग्जांपल दिया, सो दैट इज एक्चुअली ए बिग ब्रीदर फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज ये स्कोपस में जो भी जर्नल जाता है तो ये पूरी स्क्रूटनी करते हैं लोग। तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्कोपस की साइट पे जाएं, जर्नल का पूरा एनालिसिस कर लें, थॉरो एनालिसिस, तो दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि जर्नल हमारा ठीक है कि नहीं है। So they are having more than 20,500 article titles, and scientific journals are more than 3,000. So बहुत सारा कंटेंट इनके पास में है। सो वेब ऑफ साइंस वर्सेस स्कोपस, सो ये टेबल आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो वेब ऑफ साइंस में भी आपको काफ़ी डिटेल मिल जाती है, स्कोपस में भी आपको पूरी लिस्टिंग मिल जाती है, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विच पर्टिकुलर जर्नल इज गुड और नॉट। बाकी ये सब कॉन्सेप्ट हम दोबारा, एक और वर्कशॉप है जो सेकंड वाला, फाइंडिंग अ गुड जर्नल, आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स ओवर देयर आल्सो। Index journal, impact factor, that will discuss in the second workshop. So this is the website of Web of Science, clarivate.com। तो यहाँ से आपको काफ़ी डिटेल मिल जाती है। रिसोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ भी आपको पता लग जाएगा, प्रोडक्ट्स रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, एच इंडेक्स वगैरह सभी डिस्कस करेंगे हम। सो व्हाट नेक्स्ट? सो यूजीसी ने भी अपना खुद का एक रेफरेंस लिस्ट बनाया हुआ है, सो दैट इज हैविंग क्वाइट ए गुड कवरेज। और जो हम बात कर रहे थे, बार बार मैंने डिस्कस किया स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस, तो देयर इंपॉर्टेंस हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड बाय यूजीसी। तो यूजीसी ने सीधा सीधा अपनी वेबसाइट पे दिया है दैट ऑल दोस जर्नल्स व्हिच आर एक्चुअली इंडेक्स्ड इन स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, दे आर ऑटोमेटिकली यूजीसी अप्रूव्ड। तो सभी स्कॉलर्स के लिए सबसे आसान तरीका बना दिया कि आप टारगेट ही स्कोपस और वेब ऑफ साइंस करिए और कुछ जाना ही नहीं है। So only these two indexes will give you sufficient insights. कोप करके नाम से एक फोरम बना हुआ है, 2018 नवंबर it was they have actually published quite a good number of cases। वहां से आपको ethical publication as well as predatory journals related बहुत सारे केसेस पढ़ने को मिलेंगे, क्या उसके ऊपर डिसीजन हुआ, that is also visible। So there are many agencies which are working for supporting our ethical publication and guiding us properly in our research journey. So I hope in today's session I was able to meet your expectations. So I welcome all your queries if you have any. Already the time is running out, but still, yes ma'am. Thank you, sir. Participants, if you have any more queries, just please drop a message in chat box. Okay, so I can see one query. If I send our paper to Emerald and it is rejected, then we send it to other journal. Which less repute will it be authentic? Okay, then there is no harm as far as I can say from my own experiences that your publication may not be accepted by one reputed journal. So you can try for another one.
So there is no harm in that. But yes, as a researcher, we should actually check what are the review comments. Those good quality journals, they will share the comments of the reviewers also, and that can give you great insights how to improve the quality of my paper. So it is always a good idea. Some more queries are, sir. Yes, ma'am, please. There. What is the meaning of impact factor and what is the criteria of it? So impact factor, in a plain sense, I would like to describe it, because there are so many technical ways to calculate. Impact factor is the average number of citations for each and every publications in that particular journal. मान लीजिए हम टेक्नोएथिक्स जर्नल की हम बात कर रहे थे, जहां पे हमारे पास 50 अगर 50 पेपर्स पब्लिश हुए किसी एक साल के दौरान, तो उन 50 पेपर्स के कितने साइटेशंस हुए? तो 50 पेपर्स और मान लीजिए 100 साइटेशंस मिले, तो नंबर ऑफ साइटेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेपर्स, तो 100 डिवाइड बाय 50 मतलब 2, मतलब 2 इम्पैक्ट फैक्टर आ गया। तो इस इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट करने के भी कई सारे तरीके हैं। मेनी ऑफ द इम्पैक्ट फैक्टर एजेंसीज, they are calling it yearly impact factor. Some of them they are having it 3 years impact factor. Some of them they are giving it 5 years impact factor. तो 3 years वाला भी जो है that is considered to be good enough, क्योंकि 3 साल में आपको sufficient citations मिल जाते हैं। One more, sir. What is the difference between site score and impact factor? एक बार ही जो हम डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट वर्कशॉप में, वहाँ साइट स्कोर इम्पैक्ट फैक्टर आई विल डिस्कस इन डिटेल। साइट स्कोर जनरली आपका 2 इयर्स का होता है और इम्पैक्ट फैक्टर आपका 3 इयर्स का होता है। तो कुछ जगह पे ये 5 इयर्स का भी होता है। One more, sir. What are the parameters for getting published in reputed Parameters journal? number 1, your topic has to be exciting topic. It should be relevant to what is being done right now. तो एक और चीज मैं आप लोग के साथ, चलिए ये नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए रखते हैं हम टॉपिक, हाउ टू फाइंड द राइट जर्नल फॉर योर पब्लिकेशन। तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर फाइंडिंग द राइट एरिया एंड हाउ द राइट जर्नल शुड बी आइडेंटिफाइड। सो वी हैव अ सेशन फॉर इट। Okay, sir. Thank you very much. Yeah. The lecture was really very informative, sir, and extremely helpful for the research scholars. We are honored to have you among us. Thank you again. Thank you very much. Thanks the organizers and the wonderful audience that we had today. So it was my privilege to be able to contribute to your research journey. And in the next session, I look forward to meet you again for finding the right journal for your publication. All the best. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks again. So I'm leaving the session now. Now, our third session is postponed due to some unavoidable circumstances, which is on just day at the same time, okay, which is on 1 to 2:30 p.m. Devendra sir, please continue.